Now, today we are going to learn terms of issue and redemption of debenture. Usually, when a company issues debenture, it issues debenture with the terms of redemption also. That is, whether the debenture is going to be issued at par, at premium, or at discount. At the same time, it also gives the information that how the debentures are to be redeemed, whether it is to be redeemed at par or whether it is to be redeemed at premium, because on the basis of that the debenture holder decides that whether it is going to invest his money into the debenture or not. That is, the debenture holder sees the profit margin. debenture holder अपना profit margin देखता है कि debenture में पैसा लगाने में उसको फायदा है या नहीं. So there are 6 cases in total. There are 6 cases regarding terms of issue and redemption of debenture. Case number 1, issue of debenture. Debentures at par and redeemable at par. Now इसको एक साथ एक्सप्लेन भी करते चलते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल. इशू ऑफ डिबेंचर एट पार मतलब फेस वैल्यू. इफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज ₹100, तो इफ ₹1 डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹100, then it is said to be debenture issued at par and it is also redeemable at ₹100. So what journal entry we pass at the time of issue? Time of issue of debentures and at the time of redemption of debentures. So what journal entries are we going to pass at the time of issue of debenture? Bank account debited to debentures application and allotment 100, and then this will be transferred to debenture account. Debenture application and allotment account debited to -% debentures account. This entry we are going to pass at the time of issue of debenture. Now when the debentures are to be redeemed, whether it is redeemed within 1 year और इट इज रिडीम आफ्टर 1 ईयर, एक साल पहले रिडीम हो जाए या एक साल बाद रिडीम हो, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं डैश वर्स पहले ड्यू करेंगे, ड्यू का एंट्री हम पास करेंगे. ठीक है, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. हियर आई एम इग्नोरिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर को इग्नोर हम कर रहे हैं. -% debentures account debited to debentures account, debenture holders account 100 and 100. ठीक है, because debenture is a liability, the liability is decreased and another liability in the form of debenture holder arises. Now when you are making payment to the debenture holder, what will be the entry? You are redeeming debenture at par. Debenture holders account debited to bank account. ठीक है, so this is the first case of issue of debenture at par and redeemable at par. Now coming to the second case. Case number 2, issue of debenture at premium and redeemable at par. ठीक है, तो अगर
100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपया पे इशू किया जा रहा है, then it is said to be debenture issued at premium and it is redeemable at par. वापस करने के समय कंपनी 100 रुपया ही देगा, फेस वैल्यू ही देगा। तब यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री सेम रहेगा हमारा इशू का, अमाउंट बस चेंज हो जाएगा, 100 की जगह 110 और ये 110। अब यहाँ now we are going to pass transfer issue, debenture application and allotment account debited 110 to dash person debenture account to securities premium reserve account, क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ इशू का एंट्री। अब जब हम रिडीम करेंगे डिबेंचर को, ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या होगा, डैश परसेंट डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि पार पे रिडीम हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिबेंचर रिडीमेबल एट, चाहे वो पार पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो, डिस्काउंट पे इशू हो, अगर वो रिडीमेबल पार पे होगा तो तीनों केस में, केस नंबर 1, 2, 3 में सेम एंट्री होगा। पहले डिबेंचर को ड्यू करेंगे, डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कमिंग टू द नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, यानी 100 रुपए का डिबेंचर 95 रुपया में हम इशू कर रहे हैं, लेकिन वापस करेंगे तो 100 रुपया ही, यानी कंपनी 100 रुपए वाली डिबेंचर 95 पे इशू कर रही है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को वापस कितना कर रही है, 100। तो इसका केस कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ एंट्री हमारा क्या होगा, एंट्री सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट बस चेंज हो जाएगा 95 एंड 95। और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर, आपको पता है कि डिबेंचर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये हो गया 95, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 5 to dash percent डिबेंचर्स अकाउंट, कितना 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। नाउ यू सी डिबेंचर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी 100 रुपया का कर्जा ले रही है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 95 रुपया, यानी 5 रुपया उसको कम मिल रहा है। सो दिस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज टू बी रिटन ऑफ ऑन द डेट व्हेन द डिबेंचर इज बीइंग अलॉटेड, ठीक है। अब जब रिडीम करेगी कंपनी 1 साल के अंदर रिडीम करे या 1 साल के बाद रिडीम करे, तो पहले ड्यू का एंट्री पास करेगी, डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा केस में डिडक्शन का एंट्री सेम। अब हम आते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है कि इशू ऑफ डिबेंचर एट पार redeemable at premium, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, यानी 100 रुपए का डिबेंचर हम 100 रुपए पे इशू कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू मेरा 100 रुपया है एंड 100 रुपये को 100 रुपये पे इशू कर रहे हैं, पार पे इशू कर रहे हैं, लेकिन जब हम वापस कर रहे हैं तो हम 105 रुपया वापस कर रहे हैं, यानी कि हमको लौटाने समय, यानी हमसे मतलब है कंपनी, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द कंपनी इज पेइंग 5 रुपीज मोर देन व्हाट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर से उसको 100 रुपीज ही मिला है, बट जब वो लायबिलिटी को रीपे कर रही है, वापस कर रही है, देन इट इज पेइंग 5 रुपीज मोर व्हिच इज अ लॉस फॉर द कंपनी, ठीक है, ये लॉस है कंपनी के लिए। एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 रुपया और 100 रुपया। लेकिन जब हम ट्रांसफर का एंट्री पास करेंगे तो हमारा यहाँ एंट्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 5 रुपीज टू -% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 100 रुपीज एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of debentures account 5 rupees. Now you may ask me कि why premium on redemption of debenture account is credited? Premium on redemption of debenture account is a liability of the company because the company has to pay premium when it is going to redeem the debenture. जब कंपनी वापस कर रही है डिबेंचर को, होल्डर को उनका पैसा वापस कर रही है, तो कंपनी उनको प्रीमियम पे वापस कर रही है और ये प्रीमियम के वजह से ये लॉस है। सो दिस एंट्री द कंपनी इज गोइंग टू पास एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। इसीलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज। लॉस ऑन कंपनी को 5 रुपये नुकसान हो रहा है जब वो वापस करेगी, इसीलिए यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 5 रुपीज। डिबेंचर को आप देखिए हमेशा फेस वैल्यू से ही हम डेबिट या क्रेडिट किए हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब जब कंपनी रिडीम करेगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो तो 12 महीने के अंदर, बैलेंस शीट क्लोज होने के 12 महीने के अंदर रिडीम करेगी कंपनी, और अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट से 12 महीने के बाद जब रीपेमेंट करेगी तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे जब कंपनी रिडीम करेगी तो ये हमारा एंट्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने ट्रांसफर एंट्री पास किया तो यहाँ से ये जो क्रेडिट है ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। -% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज और प्रीमियम, चूंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 5 रुपीज टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को हमको कितना देना है? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। We have to pay the face value at the same time as 5 rupees as premium to the debenture holder. Hence, debenture holder account is credited with 105 rupees. Now, when you will make the payment to debenture holder, your liability will end. ठीक है? तो debenture holder liability decreases. Decrease in liability is debit. Debenture holders account debited to ये हो जाएगा बैंक, ठीक है, 105 एंड 100 क्लियर। तो केस नंबर 4, 5 एंड 6 में रिडम्पशन का सेम एंट्री होगा, ठीक है। केस नंबर 4, 5 एंड 6, तो वी हैव डिस्कस्ड केस नंबर 4। लेट्स कम टू केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब हम डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू भी कर रहे हैं एंड वापस भी कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 105 रुपीज़, लेकिन हम वापस कितना कर रहे हैं? 110 रुपीज़। तो इशू के समय तो कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है। The company is not bearing loss at the time of issue of debenture, but at the time of redemption of debenture, the company is paying more than the face value, which is a loss for the company. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ ये जो केस नंबर 5 एंड 6 है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट केस में से है, ठीक
ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, इशू के समय तो हमको 105 रुपया ही आ रहा है, ठीक है, एंड जब हम वापस करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज़, क्योंकि वापस कर रहे हैं 10 रुपया ज़्यादा, फेस वैल्यू से 10 रुपया ज़्यादा, तो ये हमारा लॉस, कंपनी का लॉस है। तो लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड ये हो गया हमारा 10 रुपीज़, ठीक है। डिबेंचर को हमेशा हम फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और प्रीमियम और रिडम्पशन हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 10 रुपया, और जो 5 रुपया हमको इशू के समय ज़्यादा मिला है, दैट विल बी क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये तो कंपनी का रिजर्व है, ये कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज सोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया 5 रुपया। अब आप देखो यहाँ पे आपका 100, ठीक है, लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर 110, ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन 115, लॉस यहाँ 105, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 105, 10 रुपया आपका लॉस हो रहा है, लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर, ये चूंकि वापस करने के समय 10 रुपया ज़्यादा दे रही है कंपनी, ठीक है, और डिबेंचर को हम फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किए, प्रीमियम हमको देना पड़ा, ये कंपनी की लायबिलिटी है कि जब भी कंपनी वापस करेगी कंपनी प्रीमियम दे देगी, तो ये लायबिलिटी है कंपनी को चुकाना है, ठीक है। इस लायबिलिटी की वजह से ही ये लॉस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इस लॉस को हम कब राइट ऑफ कर देंगे, ऑन द एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर को जब हम अलॉट करेंगे उसी साल हमको इसको राइट ऑफ भी करना है। अब लॉस, डिस्काउंट या लॉस इन इशू ऑफ डिबेंचर को हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले हम राइट ऑफ करते हैं आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ बैलेंस इज अवेलेबल, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं है तो इन दैट केस इट विल बी रिटन ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया। अब जब आप डिबेंचर को रिडीम कीजिएगा तो डिबेंचर को रिडीम कीजिएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ दीजिए, ये दो एंट्री जो है जो क्रेडिट आपने किया है, -% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज़, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़, टू डिबेंचर होल्डर कितना 110। और जब आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दीजिएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट से अमाउंट आपका वेरी करेगा, एंट्री आपका सेम रहेगा। अब हम आते हैं लास्ट केस, केस नंबर 6। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। प्रीमियम और रिडम्पशन will be shown with the heading of balance sheet reserve। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका लायबिलिटी है, जब तक प्रीमियम जो है इट्स अ लायबिलिटी एंड इट विल बी सोन अंडर द हेड नॉन करेंट। अगर ये रिडीमेबल है विदिन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, तो इसको हम करेंट लायबिलिटी के हेड में निकालेंगे अंडर द सब हेड अदर करेंट लायबिलिटी, ठीक है, जब तक रिडीम नहीं होगा तब तक। उसके बाद अगर ये 12 महीने के बाद रिडीम होगी, इट इज रिडीमेबल आफ्टर 12 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, देन इट विल बी सोन अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड अदर नॉन करेंट, ठीक है। अब आइए केस नंबर, और कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब आइए केस नंबर 6 है हमारा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ना यहाँ पे कंपनी को जो है दुगना नुकसान होता है। एक इशू करते समय उसको पैसा कम मिल रहा है, मतलब कर्ज ले भी रही है तो डिस्काउंट दे के कर्ज ले रही है ना। कितना? मान लो कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और डिबेंचर होल्डर यानी पब्लिक जो है डिस्काउंट इशू कर रही है, 10 रुपये डिस्काउंट इशू कर रही है, यानी वो 100 रुपये कर्जा ले रही है, 100 रुपये लेकिन मिल रहा है 90 रुपये, एंड जब वापस कर लिए तो 110 यानी प्रीमियम, तो 10 रुपया नुकसान इशू के समय और 10 रुपया नुकसान वापस करने के समय, यानी टोटल कितना नुकसान हुआ? 20, यानी डबल हो गया। हम इसको कैसे दिखाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे? 90 रुपया 90, ठीक है।
और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 रुपया। ठीक है, देखो दो अल्टरनेटिव है, डिस्काउंट को आप अलग रखो और जो लॉस हो रहा है वापस करने के समय उसको अलग रखो। तो लॉस हमको वापस करने के समय लॉस कितना हो रहा है 10 रुपया, और व्हाट इज द टर्म ऑफ इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, ये हो गया आपका 10 रुपया। 2 %% डिवेंचर अकाउंट 100 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ से स्टेटमेंट को हटा देते हैं। ठीक, अब आइए जब आप वापस कीजिएगा तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 100, प्रीमियम आप कितना दे रहे हैं 10 रुपया, डिवेंचर होल्डर 110, डिवेंचर होल्डर 2। एक चीज याद रखिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लॉस जो है कहीं कहीं पे इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है, जैसे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड पे डिस्काउंट भी लॉस है, तो और लॉस को लॉस है, तो आप इसको एक कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिस्काउंट आप सिंपली आप लिख सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 20 रुपया, 2% डिवेंचर 100 एंड 2 प्रीमियम। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, 6 केसेस से रिलेटेड 6 क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।